غازی ہے. میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف ویژول اسٹڈیز یونیورسٹی آف کراچی سے ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ گلگت بلتستان میں ہائر ایجوکیشن کے ادارے ترقی لے رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں یہ پاکستان کے شاید سب سے قدیمی اور روایتی طور پہ بہت میرے خیال میں رچ علاقے ہیں. اور مجھے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی جو علاقہ ہے اس کی ساری ایک اسکالرلی طریقے سے اس چیزوں کو جمع کریں، اس کی قدر کریں، جو اس کے پرانے رسم و رواج ہیں ان کو ریکارڈ کریں تاکہ آئندہ نسلوں تک یہاں کی تاریخی جو اہمیت ہے وہ دوسروں تک پہنچے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیرہ اشرت ہے. جامعہ کراچی کے شعبہ سماجی بہبود سے پچھلے 7 سال سے وابستہ ہوں. تدریس اور تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف ہوں. مجھے جان کے حقیقت میں بہت خوشی ہوئی کہ بلتستان ٹی وی جو کہ میڈیا کی دنیا میں ایک نیا چینل ہے اور خاص طور پہ وہاں کے تعلیمی تحقیقی اور دیگر سرگرمیوں کو متعارف اور لوگوں کو آگاہی پھیلانے میں مصروف ہے. اور میری یہ خواہشات اس چینل کے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کو اور تحقیقی سرگرمیوں کو لوگوں کو متعارف کرانے میں یہ چینل اپنا کردار ادا کرے گا اور میڈیا میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرحانہ سرفراز ہے. میں شعبہ سماجی بہبود جامعہ کراچی میں 10 سال سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں اور پی ایچ ڈی جو ہے میرا وہ ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے. یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ قراقرم یونیورسٹی میں تحقیقی اور علمی کام جو ہے وہ پوری جام شانی سے کیا جا رہا ہے اور وہاں کے طلباء و طالبات کو اس لائق تحسین ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں. سماجی بہبود سوشل سائنسز کے حوالے سے تحقیقی کام کی اور اکیڈمک کام کی بہت ضرورت ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس حوالے سے جامعہ کراچی شعبہ سماجی بہبود جو خدمات سر انجام دے رہا ہے ان سے استفادہ ہمارے وہاں کے لوگ بھی لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوگی. دوسرے اس حوالے سے جس قسم کا بھی تعاون ہے وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. بہرحال ہماری معاونت کرنے کے ساتھ. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گلگت اور بلتستان کے طلباء اور وہاں کے اساتذہ اپنے جامعہ کو ترقی دینے کے لیے سرگرم عمل ہیں اور علم کا اور آگہی کا اور شعور کا جو پروگرام آپ نے بنایا ہے مجھے دلی تمانیت ہوئی. شارٹ کٹ کبھی نہ ڈھونڈیں، اپنے اندر وہ میرٹ، وہ صلاحیت، وہ قابلیت پیدا کریں کہ وہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اس ملک کو علم کے نور سے منور کریں. اور میری دعا ہے کہ گلگت اور بلتستان میں جو جامعات کام کر رہی ہیں ملکی ترقی میں وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکیں اور وہ ایسے طالب علم پیدا کریں جو کل اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شمع عزیز ہے. یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان ٹیلی ویژن علمی تحقیقی حوالے سے نمایاں کام کر رہا ہے. گلگت بلتستان سے بہت سے طالب علم ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت سا کچھ سیکھ کے یہاں سے جاتے بھی ہیں. ان سب کے لیے یہ بڑی ایک اہم اپرچونٹی یا موقع ہے کہ وہ اپنا کردار تعلیمی حوالے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور باقی فورمز کے ذریعے ادا کریں اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جتنا کچھ ان سے ہو سکتا ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے گلگت بلتستان ٹیلی ویژن پہ وہاں کے رہنے والوں سے بات کرنے کا موقع ملا. یہ جو زمانہ اور وقت جو ترقی کر رہا ہے اس میں اب یہ بات بہت ضروری ہو گئی ہے کہ ہمارے ابلاغ کے ذرائع یعنی بات کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے ذرائع بہتر سے بہتر ہوں. بہت وقت سے غالباً اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارا جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اس علاقے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات
बाकी लोगों को कि जो सब जानना चाहते हैं, हम सब पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। ये जानकर मुझे मज़ीद खुशी हुई है कि आखिरकार बल्तिस्तान और गिलगित वगैरह के अंदर टेलीविज़न का काम भी हो रहा है और ये मीडिया वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया है और अब हर चीज़ उन तक जो है इसके ज़रिए पहुँच सकती है और वो भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह से तमाम बातों से आगाह और वाकिफ़ हो सकता है। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर कराची यूनिवर्सिटी आपसे मुखातिब हूँ। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि गिलगित में बल्तिस्तान गिलगित चैनल का आगाज़ हो चुका है। अगरचे मुल्क के दीगर खित्तों से तालीमी अदारों के तलबा व तालबात और असातिज़ा और दीगर लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में गिलगित में स्कर्दू और इस इलाके में आते जाते रहते हैं, लेकिन मुल्क के एक बड़ी तादाद जो है वो इन इलाकों में अभी तक नहीं गई। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि अब इस चैनल के ज़रिए जो है वो पूरा मुल्क जो है वहाँ की आवाम से, वहाँ के खित्तों से, वहाँ पे खूबसूरत नज़ारों से, वहाँ के खूबसूरत पहाड़ों से जो है वो आगाह होंगे, उनको देखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो है जहाँ पर वहाँ की आवाम और वहाँ के लोगों को जो है वो दीगर खित्तों में इंट्रोड्यूस करवाएगी। देखिए यहाँ पे जो भी एनिमेशन वगैरह हम लोग जो सीख रहे हैं यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनली इस पर काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है, शार्प इमेजेस है, पोस्टर मेजर्स हैं जो बाहर के लिए फ्रीलांस काम करके देती हैं। हम यहाँ से सीख के हमें भी हो सकता है वहाँ पे जाके जॉब करें। अगर हमारा काम अच्छा सीखेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें जॉब मिलेगी, हमें काम मिलेगा और उसके थ्रू हमारा बाहर के लिए हमारे गेट पे खुल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर सकें, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। Hello, I am Mustafa Asif and I am in Visual Studies Karachi University Department. I am doing my Media and Sciences, but now we are dealing with the subject Basic Design. Basic Design is basically a subject which definitely deals and leads you whatever the design is actually from. मुझे ये जान के खुशी हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान टीवी इलाके की सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ये वो खित्ता है पाकिस्तान का जो इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब है और इसके साथ साथ इसकी एक शानदार तारीख़ है जिसका ताल्लुक़ कई हज़ार साल पुरानी माजी से है और सकाफ़ती एतबार से बहुत रिच इलाक़ा है ये, जहाँ मुख्तलिफ़ तरह की सकाफ़तें हैं। उनका ताल्लुक़ इस्लाम से भी है, उनका ताल्लुक़ बुद्धिज़्म से भी है और दीगर कई मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ बनता है और ख़ुद इस्लाम के हवाले से बहुत अज़ीम और बुज़ुर्ग उलमा और शुअरा और उदबा इस इलाक़े में गुज़रे हैं। लिहाजा सकाफ़ती काम के हवाले से काफ़ी पोटेंशल इस इलाक़े में मौजूद है। जो लोग इस शोबे में काम कर रहे हैं वो अगर इस इलाक़े की सकाफ़त को उजागर करें तो ये चीज़ न सिर्फ ये कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तर्जुमानी होगी बल्कि पाकिस्तानी सकाफ़त की भी एक बेहतर तर्जुमानी हो सकती है। खुदावंद आलम आप लोगों को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पास गिलगित में एक टेलीविज़न चैनल काम कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान टीवी के नाम से, और ये यकीनन एक मौसू ज़रिया साबित होगा हमारे दरमियान लिंकेज का। और जैसा कि मालूम हुआ है कि जल्द ही ये टेलीविज़न सेटेलाइट पे जाएगा और इंशाल्लाह कराची वाले लोग भी इसको देख सकेंगे। हमारे यहाँ गिलगित से बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ के बच्चे तालिब इल्म बहुत मेहनती, बहुत डिवोटेड और बहुत कमिटेड होते हैं। गिलगित ऐसी जगह है जो पहाड़ों के दरमियान है और एक बात मैंने नोट की है कि पहाड़ों में रहने वाले अफराद बहुत मेहनती और जबरदस्त होते हैं और बहुत अच्छा काम करने में बहुत मेहनत करते हैं। हमारे कराची में आने वाले जितने तालिब इल्म हैं उनको देख कर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिलगित के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और बहुत वफादार होते हैं, मेहनती होते हैं, उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होता है और ये शौक़ जो है उनको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाता है। आप सब लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि इस शौक़ को हमेशा ज़िंदा रखिएगा, मुताले की आदत अपने अंदर पैदा कीजिए। पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और अपने इल्मी जज्बा के लिए मोहब्बत और अपने घर वालों के लिए मोहब्बत, यही आपको आपके लिए मशवरा का नहीं, और इसको हमेशा इसको ज़हन में रखिएगा कि हम पाकिस्तानी हैं और हम एक हैं, चाहे वो कोई गिलगित में रहता हो या कहीं पर भी रहता हो। तो पाकिस्तान में तो हमारा दिल हमारी जान है। अल्लाह ताला हम लोगों को हमेशा इसी खुलूस और मोहब्बत के साथ मिलाता रहे, और हम जब भी वहाँ आएँ गिलगित और हरमुज़ा की वादियाँ घूमने के लिए, तो आप लोगों के खुलूस और प्यार हमारे लिए हमेशा की तरह से मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें जब हम बात करते हैं नादर रियास, ख़ासतौर पर नादर रियास में गिलगित, तो यकीनन गिलगित जहाँ पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन इलाका है, वहाँ के लोग, क्योंकि मेरा एक तजुर्बा रहा है कराची यूनिवर्सिटी में, गिलगित के जो लोग थे या गिलगित के जो नौजवान लोग थे, उनसे मेरी एक इंटरेक्शन हुआ, दोस्ती हुई, दोस्तलाम हुई, तो मुझे पता चला कि वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत के साथ साथ जफाकश, मेहनतकश और एक वफादार लोग, नो डाउट। और यकीनन तालीम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो गिलगित के लोग जो हैं, और ख़ास तौर पर आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गिलगित वो जगह है जहाँ इस वक्त 100% फीमेल लिटरेसी है। उसमें यकीनन गिलगित के लोगों का, गिलगित के वहाँ के कम्युनिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और बड़ी खुशी होती है कि ये एक मॉडल है हम लोगों के लिए, स्पेशली मैं बात जब करता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से, और कराची के उस इलाके से जिसे हम कहते हैं कि अर्बन विलेजेस, तो हम लोगों के लिए वो मॉडल है, क्योंकि कराची के जो विलेजेस हैं, कराची के जो ये आबादियाँ, आज भी हमें फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम मिलता है। तो यकीनन जब बात करते हैं तो एजुकेशन के हवाले से गिलगित के लोग, गिलगित के नौजवान, जैसे हम बात करते हैं तलबा, स्टूडेंट्स, तो लेकिन किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में जो तलबा का रोल है उसके हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारा आइंदा, हमारा मुस्तकबिल ये लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे केशिना, बिरोशिश की, वकी, तो मतलब उनके साथ साथ उन्होंने उस कल्चर को भी जिंदा रखा हुआ है और जदीदत को भी उसमें शामिल किया हुआ है। तो ये एक बड़ा एक खूबसूरत संगम है, एक मतलब मांगी है वहाँ के लोगों के अंदर, इस हवाले से उन्होंने काम किया है, और यकीनन उसमें वहाँ के लोगों का, वहाँ के नौजवानों का, वहाँ के लीडरशिप का बहुत बड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान टीवी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये मौका हमें अता किया। आज इस्लाम के ताल्लुक से शुक्रगुजार आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, बात किसी भी उन्वान से हो, किसी पहलू से हो, लेकिन अगर उसका रिश्ता इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाए तो बात अपनी ओरिजिन में बहुत आफाकी हो जाती है, बहुत यूनिवर्सल, बहुत ही आलमी नोयत हो जाती है। इसलिए कि वो बात जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, वो चीज़ इटरनल है, वो चीज़ हमेशा हमेशा की है। ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि मैं आपसे कुछ ऐसे मामलात पे गुफ्तगू करना चाहूँगा जिसकी मेरे ख्याल में आपको भी ज़रूरत है और मेरे लिए भी काफ़ी ये अच्छा मौका होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो तालिब इल्म होता है उसका बुनियादी मकसद इल्म हासिल करना है, और ना सिर्फ इल्म हासिल करना है बल्कि उस इल्म को फैलाना भी है, और इसके लिए उसे जुस्तजू, लगन, मेहनत, ईमानदारी और यकसोई की ज़रूरत होती है। मकसद ये होता है कि जो हमारे शोबे में जो तालिब इल्म आते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से, इसमें शुमाली इलाक़ा जात, गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके भी शामिल हैं, तो मेरी तो पूरी कोशिश ये होती है कि जो भी तालिब इल्म पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आए और जामिया कराची में हमारे शोबे में बैनुल ताल्लुकात में तालीम हासिल करें, तो उसको हम ना सिर्फ अच्छी तालीम दें बल्कि उसमें फ़ायदेमंद सलाहियतें जो हैं वो भी पैदा करें, क्योंकि आपका जो खित्ता है वो पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत मकामात में शामिल होता है।
और मुझे खुशी है कि जिस मकसद के लिए मैं एक अरसे से कोशिश कर रहा था, मैंने आपके इलाके का दौरा भी किया 1998 में, 2000 में। मेरे पास सन 2000 में एक तहकीकी मनसूबा भी था, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए और जो रिपोर्ट मैंने लिखी उसमें ये भी सजेस्ट किया था, ये भी एक मशवरा दिया था जो अरबाब इख्तियार हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेरी इस तजवीज़ को उस वक्त के अरबाब इख्तियार ने कबूल किया और आपके इलाके में तुराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वजूद में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहायत खुशी और मसरत है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी इल्म और आगही रोज़ बरोज़ उरूज पर है। हमारे बहुत से दूर दराज इलाके, नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित, हुंज़ा के बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और यहाँ से इल्म हासिल करके वो अपने इलाकों में दोबारा जाते हैं और वहाँ उस रोशनी को बहुत खूब और अच्छे तरीके से फैलाते हैं। मेरी उन तमाम तालिब इल्मों से ये गुजारिश है कि जो यूनिवर्सिटी में अपने इलाकों से दूर दूसरे शहरों में पढ़ने जाते हैं, उनको सबसे पहले अपना मन सेटअप कर लेना चाहिए कि उन्हें किस शोबे में ज़्यादा उनका रुझान है और उसके बाद जब वो उस शोबे में उनको दाखिला मिल जाए तो वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन, तवज्जो के साथ उसमें फोकस करें और जो पीरियड या जो टाइम उस दानिशगाह में या उस यूनिवर्सिटी में वो गुजारें, अपने पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दें, दूसरी एक्टिविटीज़ को भी अंजाम देते रहें, लेकिन अपना फोकस जो वो सोच कर आए हैं, जिस शोबे में उन्होंने दाखिला लिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने में वो सलाहियत पैदा करें और उसके बाद कॉन्फिडेंस सबसे अहम चीज़ है जो एक तालिब इल्म में होना चाहिए। क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, तो एक चीज़ जो मैंने एक उस्ताद की हैसियत से महसूस की है वो ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा दिलजमी के साथ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आगे बढ़ें और मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह से वो अपना इल्मी सफ़र जारी रखेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन वो बहुत अच्छे मकाम पर होंगे और हमें बहुत ये देखकर खुशी होगी कि वो तालिब इल्म हमारी ही मादर इल्मी से फारिग तहसील होकर निकले हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान कुरैशी है। मैं जामिया कराची के शोबा जोग्राफिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि गिलगित बल्तिस्तान की टेलीविज़न से हमारे मोहतरम साहब भी हमारे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए कि गिलगित बल्तिस्तान के जो तालिब इल्म हैं वो लोग किस तरह से पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात पर जाके किस तरह की तालीम हासिल कर सकते हैं, किस तरह से मुल्क और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। एक आप लोगों की मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, जो जोग्राफी डिपार्टमेंट, उसके पास नॉर्दर्न एरियाज से जो शुमाली इलाकाजात के लोग हैं उनके आने वाले स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा यहाँ पर बहुत उम्दा नंबरों से बहुत पास होकर और बहुत आगे जा चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी फील्ड्स हैं और कुछ लोग तो उसमें से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान में और दीगर नॉर्दर्न एरियाज़ में वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और NGOs के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा साथी ख्याल ये है कि चूँकि हम लोगों का सब्जेक्ट जो है वो जोग्राफी है और इसमें इसकी बहुत सारी सब डिसिप्लिन या सब ब्रांचेज़ हैं, मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान और जो दूसरे शुमारी इलाकाजात के लोग हैं वो बहुत उम्दा तरीके से इस सब्जेक्ट में काम कर सकते हैं, क्योंकि तमाम उनके पास हर उस किस्म के वसाइल, उस किस्म का एनवायरनमेंट उनके पास मौजूद है जिसमें हम लोग रिसर्च किया करते हैं और उसके लिए हम दूर दूर जाते हैं। तो जो गिलगित बल्तिस्तान और यानी दूसरे शुमाली इलाकाजात के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो तो वहाँ के रहने वाले हैं, उस इलाके के वो बहुत बेहतर तरीके
रखते हैं, लेकिन मैं उनको ये यहाँ पर बताता चलूँ कि तालीम, बहुत सारे लोग अक्सर ये समझते हैं कि यहाँ पर बहुत महंगी तालीम है, लेकिन वो यहाँ पर आकर बहुत कम पैसे देकर, बहुत ही मामूली फीस पे कर वो ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे इल्म हासिल कर सकते हैं जिससे वो उस पूरे इलाके की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े जामे अंदाज में उसका मुताला पेश कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे शहर से आने वाला या किसी बाहर मुल्क से आने वाला वो वहाँ नहीं कर सकता। ये बात हमें भी मालूम है, पाकिस्तान के तमाम लोगों को मालूम है कि एक बहुत ख़तीर जो है यहाँ पर टूरिस्ट और सयाह के लोग बाहर से वो मुल्कों से आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं। मैंने खुद बहुत सारी अपनी आंखों से ऐसी किताबें देखी हैं, उनका मुताला की है, जो कि बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों ने लिखी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में जो लोकल जो लोग हैं वो लोग ये काम सरअंजाम नहीं दे पा रहे, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ के लोकल एक्सपर्टीज़ उनको हासिल नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि शुमाली इलाका जैसे लोग आएँ, यहाँ पर जोग्राफी की तालीम है, उसमें टूरिज़म की भी एजुकेशन है, उसमें माउंटेन्स की भी एजुकेशन है, उसमें एनवायरनमेंट की भी एजुकेशन है, उसमें डेमोग्राफी की भी एजुकेशन है। तो ये तमाम ऐसे उलूम हैं कि जिनके ऊपर अगर किसी भी शख्स उम्र का किसी भी मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अगर उसमें थोड़ी सी भी दस्तरस हासिल करे तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है इस बल्तिस्तान के लिए टेलीविज़न के रेफरेंस से कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जामियात में आएँ, कराची यूनिवर्सिटी में आएँ, और भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम लोग अपने मुल्क का नाम और अपनी मुल्क की जो जोग्राफी है, ख़ास तौर से जो हमारी माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जो हिमालय के पहाड़ हैं, उनकी जो स्टडीज़ हैं उनको पूरी जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उसके सामने पेश कर सकते हैं। तो खुदा ताला हम सबको इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक दे कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क में लोगों की तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि गिलगित-बल्तिस्तान टेलीविज़न मुख्तलिफ चैनल्स की कहकशाओं में एक नया इजाफा है। इस लिहाज से भी खुशी का बायस है कि इस चैनल की अक्सर और बेशतर जिम्मेदारियाँ हमारे जामिया कराची के साबका और मौजूदा स्टूडेंट्स उठाए हैं, और हमारे लिए बहुत खुशआइन बात है कि अब उन पसमानदा इलाकों में जहाँ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं थी, और आहिस्ता आहिस्ता इल्म की रोशनी से वहाँ के जो लोकल लोग जो बहुत ज़्यादा इस बात के ज़रूरत थे कि उन तक ये तमाम मालूमात पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के तवज्जो से वो तमाम मालूमात पहुँचे। तो मैं तमाम इंतज़ामिया को जो भी इसमें शामिल है गिलगित-बल्तिस्तान टेलीविज़न में, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह दुआ है कि वो ये चैनल जो है तो अपनी और तरक्की करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा मैं अपने बहुत सारे दोस्तों, खासतौर पर गिलगित में माशाल्लाह से बहुत बड़ी टीम हमारे दोस्तों और शागिर्दों की है, उन तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मादर इल्म से बहुत कुछ सीखने के बाद इस वक्त वापस गिलगित या बल्तिस्तान में हैं या उनके नवाही इलाकों में हैं। उनके लिए मेरे पैगाम है कि जो कुछ उन्होंने यहाँ से सीखा है, ख़ासतौर पर हमारे शोबे जोग्राफिया से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर वो वहाँ करते हैं, क्योंकि गिलगित और बल्तिस्तान एक मादरी वसाइल से भरपूर इलाका है। पानी के वसाइल हों, दुनिया के बहुत नायाब परिंदे हों, नायाब जानवर हों, नायाब दरख्त हों, नबातात हों, इन तमाम अशिया की आमाजगाह है गिलगित, और अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने एक बहुत हसीन इम्तज़ाज उसको ये बख्शा है। तो हमारी दुआ है कि उन चीज़ों को भी ये चैनल जैसे कि नेशनल जोग्राफी के लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट्स वहाँ गिलगित में मौजूद हैं, और हमारे पास कराची से भी एक्सपर्ट जा सकते हैं। हम बहुत अच्छे साइंसी प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ख़वातीन के लिए वहाँ मुरतब कर सकते हैं और उनको आगे पहुँचा सकते हैं। तो मेरा अपने दोस्तों से, तमाम साथियों से, साबका तलब इल्मों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, और हमारी जो इस सिलसिले में हमारी हेल्प हो सकती है, जो भी साइंसी हवालों से, जो भी इल्मी हवालों से, इंशाअल्लाह वो उसके लिए हासिल हैं। और इंशाअल्लाह अपना जो भी प्रोग्राम है, अंसार बंदी साहब जो कि मेरे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके तवज्जुह से मैं कहूँगा कि जब भी आपको दामे दर में सुखने, जब भी इस तरह की भी हेल्प चाहिए हो, इंशाअल्लाह हम गिलगित-बल्तिस्तान टेलीविज़न के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें हमारे तमाम बच्चे बिला मज़हबों, मिल्लत की तफरीक के बगैर जितने भी बच्चे हैं हमारे वहाँ पर, उन सब के लिए हम अच्छे प्रोग्राम शुरू करें, अच्छे मैसेजेस दें, लोगों को
यूनाइट होने की दावत दें, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करें। अब बहुत ज़्यादा फ़िरक़ावारियत हो गई, बहुत ज़्यादा तअस्सुबात होते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। हम सब एक कौम हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं, और कुरान में भी मौजूद है कि ये तमाम जो इख्तलाफात हैं ज़बान के या चीज़ें शक्ल के जो इख्तलाफात अल्लाह ताला ने रखे हैं वो हमारी पहचान के लिए हैं, और वो एक बेहतर तौर पर हमारे यहाँ एक हौसला अफजाई और कॉम्पिटिशन के लिए, वो एक दूसरे को खाने और मारने मरने के लिए नहीं है, या कि नस्ली बरतरी के लिए नहीं बनाए। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इन तमाम चीज़ों को आगे करेंगे, और ख़ासतौर पर अहले बैत और उनके घराने की जो खिदमत हैं उन तालीमात को भी इस चैनल के तवज्जुह से हम आगे तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों के सामने ये कहते हुए कि गिलगित टीवी जो लॉन्च हुआ है। यकीनन गिलगित एक ऐसा इलाका है जो ना सिर्फ सरसब्ज़ और खुशहाल है, लेकिन लोगों में काबिलियत के हवाले से भी बहुत खुशहाल है, जिसकी मिसाल है कि हमारे यहाँ सिंध में भी हर तालीमी इदारे में गिलगित से बच्चे आते हैं, और सबसे ज़्यादा मेहनती बच्चे, सबसे ज़्यादा रेगुलर, सबसे ज़्यादा पंक्चुअल बच्चे हमें इसी इलाके से मिलते हैं, और वो यहाँ आकर अपनी काबिलियत दिखाते हैं, और यकीनन तालीम अपनी कंप्लीट करके उसके बाद अपने एरिया में जाके जो है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो गिलगित टीवी भी यकीनन इन्हीं की काविशों का कोई नतीजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बाकी का हमारा मीडिया जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए और माशरे की तरक्की के लिए एक रोल प्ले कर रहा है, तो गिलगित टीवी से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो तालीमी तौर पे, तहकीकी तौर पे और मुल्क में तरक्की और खुशहाली और डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार अदा करेगा। मास मीडिया में डेवलपमेंट पार्टिसिपेंट की एक थ्योरी है, जिसमें यही कहा जाता है कि जब तक कि मुल्क में मौजूद हर हिस्से और हर सेगमेंट से पार्टिसिपेशन नहीं आएगी और प्लेटफॉर्म नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी ज़बान में हो, तब तक एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो जब आप एक हिस्से से उनकी अपनी ज़बान में उनके लिए प्रोग्राम्स प्ले करते हैं, उनके लिए उनके मैसेज को उन तक भी पहुंचाते हैं और उन लोगों तक भी पहुंचाते हैं जो उनको नहीं जानते या उनके मसाइल से आगाह नहीं है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा किरदार है जो आप लोग प्ले कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और तरक्की दे, ताकि आपका चैनल और रोज़ बरोज़ जो है वो आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। गिलगित बल्तिस्तान के हमवतनों को मेरा सलाम। ये बड़ी एक खुश आइंद बात है कि गिलगित बल्तिस्तान का टीवी जो है वो बड़ी महारत से अपना काम कर रहा है, और पैगाम जो है वो दुनिया भर में पहुँचा रहा है। हमारा ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से होने की वजह से एक फ़ायदा ये है कि हम कराची में बैठ कर के गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों से हर वक्त राब्ते में रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ताल्लुक़ात इन्हीं इलाकों से आए हुए होते हैं, जिनसे हमारा कई साल का राब्ता होता है, और उनके वापस जाने के बाद भी ये राब्ता टूटता नहीं है। उनकी मोहब्बतें और उनकी जब हम वहाँ जाते हैं तो उनकी मेहमान नवाजियाँ, ये सारी चीज़ें बहरहाल शामिल हाल होती हैं। अपने इन ख़ास तौर से तलबा और तालिबात में जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील हुए, यहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, और अब अपने इलाके में बैठ करके यकीनन अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोबों में कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो है दयानतदारी के साथ काम। सिर्फ काम तो सब बहुत से लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दयानतदारी के साथ काम करना असल में ये हमारा इस वक्त मुल्की तकाज़ा भी है, हमारा दीनी तकाज़ा भी है। लिहाजा मेरी आपसे आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं, और आपको मेरा पैगाम ये है कि जिस शोबे में आप हैं पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम और सिर्फ काम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गिलगित में जो टीवी का आगाज़ हुआ है, टीवी उसके हवाले से वो जो है मुझे पता चला है कि इल्मी खिदमत अंजाम दे रहा है, और आज कल कराची यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान के हवाले से कुछ इंटरव्यूज ले रहा है। असल में मुझे पढ़ाते हुए 22-23 साल हो चुकी है, और मुझे जानकर, सुनकर, देखकर महसूस होता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, वो आते तो हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ने, लेकिन उनको अपने मज़ामीन की अहमियत के हवाले से उनको ज़्यादा मालूमात नहीं होती। ख़ासकर उन लोगों में रुझान जो है अदबियात के हवाले से बहुत कम पाया जाता है। मैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ के बच्चों को जो यहाँ बहुत दूर से आते हैं, माँ बाप के पैसों पर और उनको मेहनत और मुशक्क़त में डालकर भी आ रहे होते हैं, अपने उनसे दूर
भी बर्दाश्त कर रहे थे, मैं उनसे कहूँगी जब भी आना अपने जहन में बात को रखे आए, कोई एक ख़ास एम या मकसद मुतय्यन करके आए ताकि उसको उस टारगेट तक पहुँचने में उनको बहुत मुश्किल पेश ना आए, और वापस जब यहाँ से जाएँ तो एक अच्छा इंसान बनकर अपने माँ बाप, ख़ानदान, अपने इलाके सबके लिए तरक्की का बाइस और खुशहाली का बाइस बने। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी तशख़्ख़ुस हासिल करने के बाद पहली दफ़ा वहाँ एक टीवी चैनल का आगाज़ हो चुका है, और वहाँ से इल्मी, सक़ाफ़ती, अदबी, इल्मी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स मुनक़िद हो रहे हैं, और ये एक खुशआयन इक़दाम है। किसी भी कौम में सियासी, मजहबी, इक़्तिसादी हर किस्म की शऊर पैदा करने के लिए जितना किरदार मीडिया अदा कर सकता है, कोई दूसरा सेक्टर इतना किरदार अदा नहीं कर सकता। और वाक़ई में इस बात की ज़रूरत भी महसूस कर रहा था कि नादन रियासत में जो अभी गिलगित बल्तिस्तान के नाम से मशहूर है, होना भी चाहिए था, ये नाम मिलना चाहिए था। एक टीवी चैनल की ज़रूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। हमारे वहाँ की जो सक़ाफ़त है इसको हम उजागर कर सकते हैं, वहाँ की सियाहत के हवाले से हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, लोगों में तालीमी शऊर को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। और जहाँ तक कराची यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, मैं यहाँ पे एक लेक्चरर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ भी इस करतू से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, और मैं आपको ये बात जानकर खुशी भी होगी, थोड़ी सी हैरत भी होगी कि कराची यूनिवर्सिटी में शोबे फ़ारसी में मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी शोबा ज़िंदगी हो, बुनियादी शर्त है आपकी तरक्की का, आपकी क्या कहना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप लगन से, मेहनत से, शौक़ से, दिललगी के साथ उस चीज़ को हासिल करें। ये नहीं है कि आपने देखा देखी में वो सब्जेक्ट्स इख्तियार करें जो लोग अमूमन करते हैं। ये मिसाल के तौर पर फ़ारसी है, जो मुख्तलिफ लिटरेचर के सब्जेक्ट्स है, इस्लामियात है, ये जो सब्जेक्ट्स है लोग समझते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के पढ़ने के बाद लोगों को रोज़गार हासिल नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट सरासर गलत है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल आपके सामने में मौजूद है। फ़ारसी सब्जेक्ट इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि फ़ारसी पढ़ के करेंगे क्या, लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पे एक मकाम हासिल किया, चलिए छोटा सा ही मकाम सही, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा पैशन है टीचिंग, मेरा पैशन है, शौक़ है, और कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का जो शरफ़ हासिल है मुझे, ये बहुत बड़ा समझता हूँ, बहुत बड़ा मकाम समझता हूँ। तो लिहाजा आपसे भी मेरी जितने भी स्टूडेंट्स है कराची यूनिवर्सिटी आते हैं, किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी का वो करते हैं, इससे क़त नज़र वो जहाँ पर भी रहें, जिस यूनिवर्सिटी में भी जाए, तालीम को इल्म समझ के हासिल करें। जैसा कि तालीम का एक फरमान है कि आप इल्म समझ के हासिल करें, तो वो इल्म आपके दिल में घर करेगा, आपके दिल में जगह बनाएगा। नहीं आप किसी मादी फ़ायदे के नज़र से अगर इल्म हासिल करना चाहें तो फिर वो उसका सिर्फ मादी पहलू तो ठीक है, बाकी इल्मी पहलू उसका तिश्ना रहता है। लिहाजा मेरी गुजारिश यही है, आप जहाँ पे भी रहें, जब कोई भी तालीम हासिल कर लें उसको आप काबिलियत हासिल कर लें, ठीक है, कामयाबी के लिए नहीं। जब आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लेंगे तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेहरबानी का काम भी करते हैं, आप मजदूरी भी करते हैं, अगर उस काम में हुनर है, उस काम में अगर आपकी सफाई है, तो फिर कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि गिलगित बल्तिस्तान टीवी चैनल का आगाज़ हुआ है, और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हमारे तालिब इल्मों ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। कराची यूनिवर्सिटी के शोबे मास कम्युनिकेशन से पढ़े गए। जब तालिब इल्म जो कुछ सीखते हैं वो जाकर करते हैं तो बहुत खुशी होती है। वैसे भी तरक्की का ज़माना है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, और ये कम्युनिकेशन एरा या कम्युनिकेशन की सदी है। बड़े पैमाने पर मीडिया को फ़रोग़ हासिल हुआ है। ऐसी सूरत में गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में चैनल का क़याम जो है बड़ा इनकलाबी अमल है, और इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो तालिब इल्म जो पूरे पाकिस्तान से कम्युनिकेशन की तालीम लेकर आए उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। दूसरा ये कि तरक्की के ज़माने में जो छोटे इलाके पसमानदा, मैं गिलगित बल्तिस्तान को पसमानदा इलाका तो नहीं कहता, लेकिन इस हवाले से कि तरक्की के हवाले से इन इलाकों में बहुत से डेवलपमेंट के काम वो चैनल के थ्रू हो सकते हैं। फिर एक और मसला होता है कि इन इलाकों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। अब मैं ये सोचता था कि अपने इलाकों में वापस जाएंगे तो इनकी सलाहियत और टैलेंट कहाँ फ़रोग़ पाएगा, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कुछ तालिब इल्मों ने वहाँ से अखबार भी निकाला है और उस पर काम कर रहे हैं।
खुश आइन काम कर रहे हैं। अब ये चैनल आ गया है, इंशाल्लाह हमारे तालिब इल्म और उस इलाके के जितने भी क्रिएटिव, ज़हीन, बासलाहियत नौजवान हैं, उन्हें अपनी सलाहियतें जो मंजर आम पर लाने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात मैं अपने तमाम तालिब इल्मों से और उस इलाके में तमाम बासलाहियत नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपको जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी, उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अब ये एक ज़रिया आपको मिल गया है गिलगित बल्तिस्तान चैनल का, TV का। इसके ज़रिए अपनी कौम को तरक्की की जानिब ले जाए। इस कौम को, जो आपकी कौम है, से तरक्की याफ्ता लोगों के सफ़ में ला के खड़ा कर दीजिए। ये आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी। चैनल लाना आसान नहीं है, चैनल के ज़रिए तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। और मुझे तवक्को है कि आप जिस जज्बे के तहत इस चैनल ऑन एयर आए हैं लेकर, उसी जज्बे के तहत अपनी कम्युनिटी, अपने इलाके, अपनी कौम, अपने इलाके के लोगों को तरक्की की जानिब गामज़न करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें जदीद दौड़ में शामिल करने की कुछ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सलाहियत और आपके एफर्ट्स को कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान टेलीविज़न स्टार्ट हुआ है और वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स अगर इस फील्ड में आना चाहें और जॉब करना चाहें और अपनी टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, तो वो हेल्प कर सकते हैं इस टेलीविज़न को और प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जो रिसर्च वर्क है, अगर स्टूडेंट्स उसमें काम कर रहे हैं तो वो भी आएँ, एजुकेशनल साइट्स इसमें शुरू की जाएँ, एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किए जाएँ और वहाँ के बच्चों को तालीम के हिसाब से उनकी प्रमोशन और उनकी एडवांसमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं थ्रू टेलीविज़न। उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएं, टेक्निकल साइड पे भी, बायोलॉजिकल साइंसेस में भी, आर्ट्स में, सोशल साइंसेस में, जिसमें चाहे वो वर्क करें। मुझे जानकर बेहद खुशी हासिल हुई कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे पसमानदा शहर के अंदर TV का क़याम अमल में आया है। मीडिया आज के दौर की एक अहम क़ुव्वत है जिसको हम मनफी और मुस्बत तमाम कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल का इजाफा ख़ासकर ऐसे शहर में, ऐसे इलाके में, ये बहुत कदर कीमत का हामिल है। ज़रूरत इस बात की है कि इस चैनल से मुस्बत काम किया जाए। गिलगित और उसके पूर्व जवार के इलाके यानी चाइना है या वस्ती एशिया के ममालिक हैं। इन ममालिक के अंदर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाया जाए, पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत अंदाज के अंदर शानदार प्रोग्राम तैयार करके टेलीकास्ट किए जाए और इन इलाकों के अंदर जो मुसलमान हैं इस्लाम के हवाले से उनकी सही रहनुमाई की जाए। इसलिए जो है इन उमूर पे अगर ये चैनल तवज्जो दे तो मैं समझता हूँ कि ये चैनल बहुत मकबूल चैनल बन जाएगा। जैसा कि बहुत से चैनल्स हैं, मिसाल के तौर पर एक नेशनल जोग्राफिया के नाम से एक चैनल आता है, एक डिस्कवरी के नाम से चैनल आता है, तो वो मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों की हिस्ट्री को बयान करते हैं, उनकी पिकनिक पॉइंट्स, दुनिया में जितने पिकनिक पॉइंट्स हैं वो उनको दिखाते हैं, वहाँ के रेट भी बतलाते हैं कि भाई यहाँ क़याम के इतने अखराजात हैं, यहाँ क़याम के इतने अखराजात हैं। तो ये तफसीलात अगर लोगों को बताई जाए कि कहाँ से कौन सी कन्वेंस मिल सकती है, तो ये जो सयाहत का शोबा है हमारा वो बहुत फ़रोग़ पाएगा और ख़ुद पाकिस्तानी जो हैं वो इन इलाकों में जाएंगे और ये बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया बन जाएगा। तो मैं इस पर बहुत खुशी का इजहार करता हूँ कि माशाल्लाह ये चैनल शुरू किया गया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत तरक्की करेगा। हमारी दुआएं इस चैनल के साथ है और इसी पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने ख्यालात का मौका दिया। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि गिलगित बल्तिस्तान TV चैनल इल्म व आगही के प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ये वक्त का अहम तकाजा है। मुल्क और कौम और उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम को मुत्तहिद रखने और पूरी दुनिया में
क़याम अमन के लिए ये एक इंतहाई अच्छी कोशिश और लायक तहसीन अमल है जो इन्होंने शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मुल्क के दूर दराज इलाक़ों को बाहम करीब लाने की एक अच्छी कोशिश होगी और मुख्तलिफुल ख़याल लोगों को एक अच्छे प्लेटफार्म पर जमा करने का एक ये अच्छा सिलसिला है। और इसी तरह से अगर ये चैनल अपनी खिदमत अंजाम देता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब ये तरक्की के मनाजिल तय करेगा। और दुनिया तो वैसे भी एक ग्लोबल विलेज बन ही चुकी है। ये इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के लोगों को, न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ करने की ये कोशिश होगी। और इसका फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि चूँकि एक मस्बत काम का आगाज़ किया गया है, अच्छे काम का आगाज़ किया गया है और इल्म की जो खिदमत आप सरअंजाम देंगे ये वो खिदमत है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इंसान को ये इल्म अता किया था। और ये बात इरशाद फरमाई कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इन नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की और तमाम लोगों से इस्तिफ़ादा करने की, जो अहले इल्म हैं, जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं, जो बड़े उलमाए किराम हैं, जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं, इन तमाम को इस चैनल के ज़रिए अल्लाह ताला मुज्तमा करने की इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कराची यूनिवर्सिटी वो सबसे बड़ी जामिया है। इस जामिया में 52 तदरीसी शोबे, 17 इंस्टीट्यूट्स और 3 चेयर काम कर रही हैं। 3 चेयर्स में से एक चेयर शाह लतीफ़ भुट्टाई की चेयर है, दूसरी चेयर सीरत चेयर है और तीसरी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चेयर है जो हाल ही में कायम है। इन सब तीनों चेयर्स में जो सबसे ज़्यादा फाल चेयर है तो शाह लतीफ़ भुट्टाई चेयर है। ये जामिया कराची का एक अहम शोबा है जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई के कलाम, फ़िक्र और फ़लसफ़े पे तहक़ीक़ होती है। शाह साहब अगरचे सिंध के शायर थे और सिंधी में शायरी की, लेकिन जिस दौर में उन्होंने शायरी की उस दौर में बर्रे सगीर में सूफीज़म तरक्की पजीर था, तरक्की पा रहा था। और इस खित्ते में आपको कई ऐसे शोरा मिलेंगे जो उनके हमअसर हैं। पंजाब में आप देखेंगे बाबा बुल्ले शाह है, वारिस शाह है, सरहद में आप देखेंगे रहमान बाबा मिलेंगे, मस्तफ़ा अली आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे। तो ये वैसे भी बड़े सगीर सूफियों की धरती है, अमन की धरती है। यहाँ हर दौर में ऐसे लोग आते रहे हैं जो लोगों को अमन, भाईचारे, मोहब्बत और सूफीज़म की तरबियत देते रहे। यही काम शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने सिंध में किया है। अगरचे वो एक सूफी शायर थे लेकिन इसके साथ साथ वो एक इनकलाबी शायर थे। उन्होंने अवाम की बात की है, लोगों की बात की है, लोगों के मसाइल की बात की है, लोगों के रहन सहन को उन्होंने देखा है और सिंध के चप्पे चप्पे को उन्होंने घूमा और वहाँ के लोगों के मसाइल, वहाँ के लोगों का रहन सहन और वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है उसकी उन्होंने अपनी शायरी में अक्कासी की है। और दूसरी जो बुनियादी बात है, ये जामिया उनकी सबसे बड़ी जामिया है और ये शहर मिनी पाकिस्तान कहलाता है जहाँ मुख्तलिफ सूबों के लोग आके आबाद हुए हैं। हमारी जामिया में भी मुख्तलिफ इलाकों के लोग आके पढ़ते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद गिलगिती बच्चों की भी है जो यहाँ मुख्तलिफ शोबाजात में पढ़ती है। बड़े मेहनत करते हैं वो बच्चे, इतने दूर दराज इलाके से आते हैं, यहाँ रहते हैं, मुश्किल और कठिन हालात में भी वो रह के अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। हम दावत देते हैं कि आप आइए और इस जामिया में जहाँ जहाँ तहक़ीक़ और तदरीस के मौक़े हैं हम आपकी मदद करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई चेयर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, जहाँ पे एक सेमिनार लाइब्रेरी है जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई का जो रिसाला, उनकी शायरी, उनका कलाम का जो मजमूआ उसके हवाले से उनकी कलमी नुस्खे और उनके छपे
पे वे जितने भी मिसालें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और उनसे रिलेटेड लतीफ़ियात के टॉपिक पे जितनी बुक्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा हमारी इस लाइब्रेरी में सिंधी लिटरेचर के हवाले से, सिंध की हिस्ट्री के हवाले से, पोइट्री के हवाले से, स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए इंसाइक्लोपीडियाज़, डिक्शनरीज और रिलीजियस बुक्स वगैरह सब अवेलेबल हैं या फिर उसकी इशूरेंस करवा के उसकी फ़ोटो स्टेट करवा सकते हैं। मेरा नाम मज़हर अब्बास रज़ीक और मैं विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्टूडियो का हेड हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मदनी साहब गिलगित बल्तिस्तान टीवी से तशरीफ़ लाए यहाँ पे फ़रोग़ इल्म के लिए। हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से और उस इलाके से शुमाली इलाक़ाजात से हमारे लोग बहुत कम इस डिसिप्लिन में आते हैं। यानी हमारे यहाँ विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में 5 डिसिप्लिन हैं: आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये सारे ऐसे तख्लीकी फील्ड्स हैं हमारे यहाँ जो हमारी सोशल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है। और मेरा जो डिसिप्लिन है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान में बिल्कुल नया डिसिप्लिन है, इसलिए तो मैं इसका पहला बैचमेट हूँ और 2000 में हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो मेरी आप लोगों से दोबारा से गुजारिश है कि आप लोग इंशाल्लाह विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पे एडमिशन लेके